السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 109 تا 115 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم بہتر امتوں ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ان پر جما دی گئی خواری جہاں جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جما دی گئی محتاجی۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ فرما بردار اور سرکش تھے، یہ اس لیے کہ نا فرما بردار اور سرکش تھے۔ سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ لائق ہیں، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مرا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہیں ڈر والے۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ پیارے دوست، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شان نزول:
यहूदियों में से मालिक बिन सैफ और वहाब बिन यहूदा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद वगैरह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम तुमसे अफजल हैं और तुम्हारा और हमारा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है जिसकी तुम हमें दावत देते हो। इस पर ये आयत नाजिल हुई। तिरमिज़ी की हदीस में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा न करेगा और अल्लाह ताला का दस्त रहमत जमात पर है, जो जमात से जुदा हुआ दोज़ख में गया। सैयद अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके असहाब यहूद में से और नजाशी और उनके असहाब नसारा में से ज़ुबानी तान-तशनी और धमकी वगैरह से शान नज़ूल, यहूद में से जो लोग इस्लाम लाए थे जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके हमराए रऊसाए यहूद उनके दुश्मन हो गए और उन्हें ईज़ा देने की फ़िक्र में रहने लगे। इस पर ये आयत नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुतमईन कर दिया कि ज़ुबानी कीलो-काल के सिवा वो मुसलमानों को कोई आज़ार न पहुँचा सकेंगे। गलबा मुसलमानों ही को रहेगा और यहूद का अंजाम ज़िल्लत और रुसवाई है। और तुम्हारे मुकाबले की ताब ना ला सकेंगे। ये गैबी खबरें ऐसी ही वाक़ई हुई, हमेशा ज़लील ही रहेंगे, इज़्ज़त कभी ना पाएँगे। इसी का असर है कि आज तक यहूद को कहीं सल्तनत मुयस्सर ना आई, जहाँ रहे रियाया व ग़ुलामी बनकर रहे। थाम कर यानी ईमान लाकर मुसलमानों की पनाह लेकर और उन्हें जज़िया देकर, चुनाचे यहूदी को मालदार होकर भी गनाए कल भी मुयस्सर नहीं होता। शान नज़ूल जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके असहाब ईमान लाए, तो अहबार यहूद ने जल कर कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम में से जो ईमान लाए हैं, वो बुरे लोग हैं। अगर बुरे ना होते, तो अपने बाप-दादा का दीन ना छोड़ते। इस पर ये आयत नाज़िल फरमाई गई। अता का कौल है कि मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन से 40 मर्द अहले नजरान के, 32 हबशा के, 8 रोम के मुराद हैं, जो दीन ईसवी पर थे। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, यानी नमाज पढ़ते हैं। इससे या तो नमाज इशा मुराद है, जो अहले किताब नहीं पढ़ते, या नमाज तहज्जुद, और दीन में मुदाहिनत नहीं करते। यहूद ने अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके असहाब से कहा था कि तुम दीन इस्लाम कबूल करके टूटे में पड़े, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी कि वो दर्जात आलिया के मुस्तहिक को ये और अपनी नेकियों की जज़ा पाएँगे। यहूद की बकवास बेहुदा है, जिन पर उन्हें बहुत नाज़ है। शान नज़ूल ये आयत बनी कुरैज़ा व नुज़ैर के हक़ में नाज़िल हुई। यहूद के रऊसा ने तसील रियासत व माल की गरज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की थी। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि उनके मालो औलाद कुछ काम ना आएँगे, वो रसूल की दुश्मनी में नाहक अपनी आक़िबत बर्बाद कर रहे हैं। एक कौल ये है कि ये आयत मुशरिकीन कुरैश के हक़ में नाज़िल हुई, क्योंकि अबू जहल को अपनी दौलत व माल पर बड़ा फ़ख्र था और अबू सुफ़ियान ने बदर व उहद में मुशरिकीन पर बहुत कसीर माल खर्च किया था। एक कौल ये है कि ये आयत तमाम कुफ़ार के हक़ में आम है। उन सब को बताया गया कि मालो औलाद में से कोई भी काम आने वाला और अज़ाब इलाही से बचाने वाला नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ इसकी तफ़सीर भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को तरतील से समझ कर और उसके अहकामात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी तब्दील करने और गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम अ, प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियों को परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आपसे ये सदा है कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलमा गो मुसलमान इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन।